Assalamu alaikum everyone. Can you all hear me? Okay guys, so this is the question that we have to do today. ये मैन्युफैक्चरिंग का एक मुश्किल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है? So I'll go very slow. I'm giving all of you 2-3 minutes, सही है, because it's a lengthy question. 2-3 minutes to read this. सही है, तमीज से ध्यान से पढ़ लो ये, क्योंकि मुश्किल सवाल है. अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, and then we need to make a provision for unrealized account. That is for 8 marks, which is a very good thing. सही है. And एक corrected income statement बनाना है, and then we need to make a corrected statement of financial position and explain your treatment of finished goods in the inventory valuation. Okay. This is the balance sheet he has made. Now let's read this. Nathan Akril is a sole trader who has successfully run a manufacturing business for many years. His business manufactures one product, the squam. हमारा year end है 31st December. सही है. और 1st January को जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो थी 1000 यूनिट्स. साल के बीच में जो प्रोडक्शन हुई है वो उसके यूनिट्स हैं 10318. मैं भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? These were produced by the factory and closing inventory was 1240. ठीक है? This is my opening inventory. This is units produced, and this is my closing inventory. The guy uses FIFO method of inventory valuation. इस बात की सिर्फ एक इम्पोर्टेंस है कि ओपनिंग इन्वेंट्री पहले बिकी होगी और एंड में जो इन्वेंट्री बची है 1240
that would be left from this year's production. ठीक है, इससे अकाउंट मतलब हमारे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस फीफो वाली बात से. सही, so don't get confused reading this. This just means कि opening inventory सबसे पहले बिकी होगी. ठीक है. Production is transferred from the factory to the sales department at cost plus 40. ये हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज है, 40%. So this is the percentage for our factory profit. So yeah. Unfortunately, the bookkeeper was taken ill at the year end, and Nathan Akril decided he would have to produce his financial statements himself. He did not know how to value. अच्छा, ये बड़ी important line है यहाँ से. He did not know how to value the inventory of finished goods at that date. ठीक है, और ये कौन सी डेट की बात हो रही है? ईयर एंड की बात हो रही है. सो इस बंदे को, नेथन एक्रल को, ये नहीं पता था कि 31 दिसंबर को जो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है उसको किस तरह वैल्यू करना है. ठीक है, he did not know how to value the inventory of finished goods at 31st December. So he decided to value each squam at the same value as had been used on 1st January. तो देखो इसमें दो बातें काम की हैं. पहली बात कि इसको ये नहीं पता था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को वैल्यू कैसे करना है. तो इसने ना क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर दिया है एट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है, विच इज रॉन्ग. सही है. सो एक चीज तो मुझे इससे पता चल गई है कि नेथन ने जो ये बनाया है इसमें 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, ये जो गिवन है, ये मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि सवाल में बता दिया गया है कि ये इसने गलत वैल्यू की है. ठीक है, ही वैल्यूड दिस इनकरेक्टली. तो इसकी मुझे सही करेक्ट वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी, जिसमें कोई इतना मसला होगा नहीं. I'll tell you how to find that out. But I hope you all understand कि this closing inventory of finished goods, this value is incorrect. It's incorrect. इसमें कोई confusion तो नहीं है? Is there any confusion in this? This is October, November 12, 43. ठीक है. Okay, then we have this income statement. इस income statement को ना, अच्छा, why is it incorrect? The reason it's incorrect is because Nathan, he did not know how to value the inventory of finished goods at that date. Therefore, he decided to value SQUAM at the same value as had been used on 1st January. सही है. तो इसने basically क्या किया, if you want, इसने closing inventory के per unit को, एक यूनिट को वैल्यू कर दिया है जितने का एक यूनिट था ओपनिंग इन्वेंट्री का. सही है. अब जरूरी नहीं है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री का एक यूनिट अगर लेट्स से 12 रुपए का हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो इस साल भी बना है वो भी 12 का हो. ठीक है, उसका रीजन ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री बेसिकली वो स्टॉक है जो पिछले साल बना था और वो बिका नहीं था, तो वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया. ठीक है. So the opening inventory, सही है, अगर opening inventory is basically the stock जो पिछले साल मैन्युफैक्चर हुआ था और नहीं बिका था, तो पिछले साल की वो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री थी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर पिछले साल एक चीज $12 की पड़ी थी तो इस साल भी $12 की पड़ी हो सकता है कि यार इस साल लेट्स से हमारा मटेरियल महंगा हो गया हो, लेबर महंगा हो गया हो, तो इस साल की करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डिफरेंट देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लास्ट ईयर. So it's not for the same reason. हमारी अगर ओपनिंग इन्वेंट्री का एक यूनिट $12 का है फॉर एग्जांपल, तो जरूरी नहीं है कि इस साल भी हमें मैन्युफैक्चरिंग सेम कॉस्ट पे पड़ी हो. ठीक है. तो इसने गलती ये की है
कि क्योंकि इसको ये नहीं पता था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है, इसने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग इन्वेंट्री के रेट पे वैल्यू कर दिया, विच इज रॉन्ग। सही है। So we will have to find out the correct value for the closing inventory of finished goods. Okay. So now moving on, ये जो इसने इनकम स्टेटमेंट बनाई है ऑब्वियसली इसने बिल्कुल गलत बनाई होगी। इस इनकम स्टेटमेंट को ना मैं ट्रायल बैलेंस की तरह यूज करूंगा, मतलब जो जो चीजें मेरे काम की हैं आई जस्ट पिक दीज थिंग्स अप। सो सबसे पहले रेवेन्यू है, फिर इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, देन वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, and we have purchases, then we have closing inventories, manufacturing wages. Manufacturing wages should be a part of manufacturing account, then supervisory wages, factory rent, office rent, depreciation of factory machinery, ठीक है, direct expenses, carriage on raw materials, admin and selling expenses. I hope you guys know by now कि जो expense factory से relate करता है वो manufacturing में जाता है, और जो expense ऑफिस से रिलेट करता है दैट कम्स इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसने सब कुछ यहाँ डाल दिया, तो हम लोग सही बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले हमारे पास आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें गिवन है, आई थिंक इट्स 31,000। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 31,000। इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल which is purchases हमें गिवन है 261,000। ठीक है, purchases of raw materials 261,000। इसमें हम ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स और फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। कैरेज इनवर्ड्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स था 2500 और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स है 46,400। सो 2500 और 46,400। This will give us the cost of raw materials consumed. This is 248,100। अच्छा भाई, अब इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट, वी शुड ऐड, इसमें फिर क्या ऐड होता है, फिर ऐड होता है डायरेक्ट कॉस्ट्स। अब देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या गिवन है, फिर एक साथ लिख लेंगे। सो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास है
मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. सुपरवाइजरी वेजेस जो है, सुपरविजन इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, इट्स नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आएगी, ये हमारा ओवरहेड है सुपरवाइजरी. फैक्ट्री रेंट भी ओवरहेड है, ऑफिस इसमें नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन ओवरहेड, ऑफिस की डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगी. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा बिल्कुल, बिकॉज उसमें वर्ड ही डायरेक्ट का यूज हुआ हुआ है. ठीक है, और एडमिन एंड सेलिंग नहीं आता, वो ऑफिस में जाता है. सो आई थिंक वी हैव टू डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस. सही है, क्योंकि इसके नेम में ही डायरेक्ट है तो ये आएगा, और एक है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. सो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इज 166, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9200. Manufacturing wages is 166, and direct cost, yeah, direct expenses were direct expenses were 9200. Please add these two. This should be 175,200, and this will give us our prime cost, which is 423,300. ये प्राइम कॉस्ट आ गई. यहाँ तो कोई मसला? Okay, so after this we will add indirect expenses. You guys please copy till here, give me a minute. Okay guys, did you copy till here? Acha, indirect expenses mein, after this, let's write down the indirect expenses, which are, एक तो ये supervisory wages, then we have factory rent, and then we have depreciation of factory equipment. ये तीन हमारे overheads हैं for factory. So supervisory wages हैं 42,800, factory rent is 36. पहले दोनों लिख लेते हैं. $36,000, and then we had depreciation on factory equipment. Yeah, machinery. This is 13,800. Add this up. This is 92,600, और 423,300 हो जाएगा 515,900. सही है. अब इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी ना इन्वेंट्रीज में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिख रहा. अगर वर्क इन प्रोग्रेस होता तो वो भी हमें काम आता, बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस एंड में ऐड होता है. ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होती है.
अब क्योंकि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ डायरेक्टली, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सही है। आई एम राइटिंग दिस 5 and 5 अगेन, सही है। दिस 5 and 5 900, ये डायरेक्टली हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वरना अभी हम वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर रहे होते। ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई। फिर इसमें हम ऐड करते हैं अपना फैक्ट्री प्रॉफिट जो कि था 40%, सवाल में गिवन था। तो जरा ऐड करो 5 and 5 900 का 40%, this should be 206,360। इससे आ जाएगी ट्रांसफर वैल्यू, $7,222,60। अच्छा, ये हमारी ट्रांसफर वैल्यू आ गई, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बन गया। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था 8 मार्क्स के लिए, वी हैड टू मेक द टी अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आता है बैलेंस कैरिड डाउन। अब यार ये बनाने से पहले ना सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज पे आता है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू है जो कि सही है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है 58,800। मसला किधर था? मसला था कि भाई ने जो, इस नेथन एक्रिल ने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू लिखी थी, ठीक है, वो गलत लिखी थी। तो हमें इसकी सही वैल्यू निकालनी है, एंड दिस इज रियली इजी। देखो, इस क्वेश्चन ने क्लियरली हमें बताया था कि इस साल हमने 10,318 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट, मतलब दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस ईयर, 10,318। और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने बचे हैं? 1240। सो इफ दिस इज द ट्रांसफर वैल्यू फॉर 10,318 यूनिट्स, ये अगर 10,318 यूनिट्स की ट्रांसफर वैल्यू है, तो इफ आई डिवाइड दिस ट्रांसफर वैल्यू बाय 10,318, I will get the value of 1 unit. Agreed? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7,222,60 डिवाइडेड बाय 10,318। इससे मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 70 पर यूनिट। ये इस साल की वैल्यू है। आई कैन रिपीट इट अगेन। भाई देखो, हमें इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए मैंने क्या किया, मुझे ये पता होना चाहिए ना, मुझे पता है कि इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो सवाल में गिवन है कि इसके 1240 यूनिट्स हैं। मुझे इसकी सही वैल्यू चाहिए ना, इसके 1240 यूनिट्स हैं। सही, आई नो दैट इट हैज 1240 यूनिट्स। इफ आई जस्ट फाइंड आउट कि एक यूनिट कितने का है, तो मैं 1240 को उस यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस ट्रांसफर वैल्यू, ये जो है, ये हमारी इस साल की ट्रांसफर वैल्यू ना, हमने जो इस साल पूरी मैन्युफैक्चरिंग की है। सो इस साल हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? सवाल में लिखा है कि इस साल हमने 10318 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर 10318 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ये वैल्यू है, सही है, दिस इज द ट्रांसफर वैल्यू फॉर 10318 यूनिट्स, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस चीज को डिवाइड कर दोगे बाय 10318, तो इससे आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। सही है, सो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट चेक करो कितनी आ रही है, डिवाइड 7,222,60 बाय 10318, तो एक यूनिट मतलब इस साल था 70 का। तो अगर एक यूनिट 70 का था और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में 1240 यूनिट्स हैं, तो 1240 यूनिट्स कितने के होंगे?
ये फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री की सही वैल्यू है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? अच्छा देखो, अगर तुम लोग का क्वेश्चन नहीं भी है ना, तो तुम लोग को और क्लैरिटी देने के लिए देयर इज वन मोर थिंग जो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि नेथन साहब ने क्या किया था। सही है, उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे वैल्यू की थी। हमारे सवाल में लिखा, देखो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। अब हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए कि क्वेश्चन में क्या हुआ हुआ था। क्वेश्चन में ये हुआ था कि उसने कहा था कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड जितने की थी ना, उसी पे उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर दिया था। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड देखते हैं क्या सीन था। तुम लोग देखो ओपनिंग इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री के 1000 यूनिट्स थे, 1000 यूनिट्स थे। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के 1000 यूनिट्स थे और ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन थी 58,000, sorry guys, I had some connectivity issues. Okay, can you guys hear me again now clearly? Yeah, what was the last thing that you guys could have? तुम लोग ने ये देखा था, how did I come up with 58.8? So see, opening inventory of finished goods हमें given थी 58,800 और क्वेश्चन में मेंशन था कि ओपनिंग इन्वेंट्री के 1000 यूनिट थे। ठीक है, तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के 1000 यूनिट थे और 1000 यूनिट की वैल्यू थी 58,800, सो ऑब्वियसली एक यूनिट कितने का था? 58.8। मेक सेंस? सो नाउ
क्वेश्चन में क्या हुआ था, इफ यू सी क्लोजिंग इन्वेंट्री के 1240 यूनिट्स हैं। सो नेथन ने क्या किया होगा, उसने 1240 को मल्टीप्लाई किया होगा 58.8 से। उसने 1240 को मल्टीप्लाई किया होगा 58.8 से, जो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी, और आई थिंक ये आ रहा होगा उसका आंसर क्लोजिंग इन्वेंट्री का। 1240 इंटू 58.8 आता है 72912 आता है। तो शायद उसने ये लिख दिया होगा, विच वॉज रॉन्ग। और आई थिंक क्वेश्चन का ये रहा सी, उसने इस तरह किया था, ठीक है, विच इज रॉन्ग बिकॉज इस साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस साल की ट्रांसफर वैल्यू इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। सो आपको लास्ट ईयर की वैल्यू पे उसको वैल्यू नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द रीजन दिस वाज रॉन्ग, and hence this is our correct value for closing inventory of finished goods, which I calculated using this year's value. Are you guys clear now? Anyone who has confusions? यार आतिफ, ट्रांसफर वैल्यू में फैक्ट्री प्रॉफिट बिल्कुल ऐड हुआ है, तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स को इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया है बिकॉज ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मैंने फिनिश गुड्स निकाली है ना, ये मैंने इसकी ट्रांसफर वैल्यू ही निकाली है, मैंने ये इसकी कॉस्ट नहीं निकाली, ठीक है। अच्छा नेहा, you said no, so do you still have any confusion in this? Are you confused? Okay. अच्छा, after this अब जरा इसका यूआरपी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जो 8 मार्क्स का था। ये ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। ओपनिंग का यूआरपी निकालने के लिए मैं 58,800 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से और डिवाइड करूंगा 140 से, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है। और यूआरपी का क्लोजिंग निकालने के लिए मैं 86,800 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से और डिवाइड करूंगा 140 से। ओपनिंग आ रहा है 16,800, क्लोजिंग कितना आ रहा है, यस गाइस, क्लोजिंग कितना है, 24,800। सो उससे हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन विल बी 8,000, ठीक है। और देखो ये 8 मार्क्स का था, सही है, तो उसको थोड़ी इज्जत देना। इज्जत देने का मतलब है कि सीडी के बाद वापस बीडी लिख देना, ठीक है, ये लिख देना वापस नीचे, ठीक है। दिस वाज फॉर 8 मार्क्स। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अगर नहीं है तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एनीवन confusions? Can we move on to income statement? Okay, clear. Best. Let's try and make the income statement now. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आएगा रेवेन्यू, जो कि है, हमें रेवेन्यू इज गिवन 880, रेवेन्यू गिवन है 880, इसमें से माइनस होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें हमारे पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की ट्रांसफर वैल्यू प्लस वैल्यू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
सही है, ये भी ट्रांसफर वैल्यू आती है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की ट्रांसफर वैल्यू। ठीक है, सो ओपनिंग इन्वेंट्री ये है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है और ट्रांसफर वैल्यू ये है 58,800। This is 58,800. This is 7,222,600 and this is 86,800. ये कितना आ रहा है? How much is this? This is 694,260 and the gross profit is what's the gross profit? This is 185,740. अच्छा, इसमें से माइनस होंगे एक्सपेंसेस। Again, please remember, income statement में से वो expenses आते हैं that are related to office. So expenses में हमारे पास जो income statement से related है, I'm highlighting them with green. एक होगा office rent, एक होगा depreciation of office equipment, and one would be admin and selling expenses. These three would come. So 21, 2,900 and 201. 21,000, 2,900 and 201. Rent, depreciation, 21,000, 2,900 and admin and selling. Admin and selling would be 201. Let's add these up. 224,900. ये माइनस करो, इससे आ रहा है आई थिंक ट्रेडिंग नेट लॉस which is 39,160 का लॉस आ रहा है। फिर इसमें क्या ऐड होता है भाई? इसमें फिर ऐड होता है हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट, और फैक्ट्री प्रॉफिट इज 206,360। ये फैक्ट्री प्रॉफिट था और इसमें से इंक्रीज माइनस होगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर यूआरपी which is 8,000 and so we'll be left with 198,360 और उससे टोटल नेट प्रॉफिट आएगा this is 159,200. ठीक है, now what we need to do next is हमें इसकी this is done, this is done, this is done, हमें इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है करेक्टेड। तो मैं वो यहाँ पे बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें नॉन करंट एसेट्स एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, सही है। एंड फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में वी हैव रॉ मटेरियल्स जो कि सही है 46,400, ये मैंने कॉपी कर दिया। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। फिनिश गुड्स हमें सही करने पड़ेंगे, रिसीवेबल सही है, बैंक भी सही होगा, पेबल्स भी सही होगा, और इसमें एक और चीज करेक्ट करनी पड़ेगी विच इज प्रॉफिट। सिर्फ ये दो चीजों की करेक्शन है, बाकी
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सेम कॉपी होगी, बाकी इसने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड्स की जो मैं इन्वेंट्री लिख रहा हूँ उसकी आई पुट अप द वैल्यू व्हिच वाज, जो हमने निकाली थी 86,800, ठीक है। So we will write down 86,800, इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और यहां से माइनस होता है उसका सीडी, ठीक है। और इसका सीडी था, the CD for this was 24,800. So ये बच रहा है, this is coming as 62, सही है। एक ये चीज सही करनी थी, बाकी ठीक है, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। देखो बाकी तुम्हें ये एज इट इज कॉपी करना है, एक तुम्हें ये चीज सही करनी थी जो मैंने तुम लोगों को करके दिखा दी। दूसरा प्रॉफिट जो तुम्हें यहाँ पे लिखना चाहिए वो तुम्हें लिखना चाहिए, क्या प्रॉफिट आया हमारा, ये लिखना चाहिए 159,200, तो इसकी जगह आ जाएगा 159,200, सही है। बाकी तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी। Okay, the last thing that we need to do is we need to explain our treatment of finished goods in the inventory valuation. इसका बेसिकली मतलब यह है कि बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने अपनी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को किस तरह वैल्यू किया है। सो यू शुड राइट, ये लिख लो अगर लिख रहे हो, कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इन्वेंट्री should be valued at the lower of cost or NRV. Hence, we recorded the closing inventory of finished goods at cost in the SOFP rather than at the transfer value. देखो बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की जो ट्रांसफर वैल्यू होती है उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट करते हैं माइनस, ताकि इसको हम रिकॉर्ड कर सकें उसकी कॉस्ट पे, सही, ताकि आप बैलेंस शीट में एक चीज को कॉस्ट से ऊपर पे शो ना कर रहे हो। नाउ इन दिस होल क्वेश्चन, बैलेंस शीट वाले पार्ट में और ये सी वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन है? ओके यार, आज मैं तुम लोग को आई विल बी सेंडिंग यू एन असाइनमेंट, उसका पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप पे, उसमें होंगे 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है। आई विल सेंड यू अ पीडीएफ, उस पे 5-6 क्वेश्चंस होंगे और वो तुम लोग को गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है बाय संडे, ठीक है। So I'll see you guys in next class tomorrow. Have a great day. Bye bye.